Hello students, how are you? I hope all of you are fine and safe at your home. I am Shekhar Prajapati. In last video we have discussed about the tenses, their formation, their transformation, their identification. We have discussed very well. But there was, I think, incomplete discussion took place over there. I told you to prepare a table of the tenses based on the given prescribed form. Okay? So I have prepared the table of all 12 tenses. Based on this table, we are going to solve every problem which we get while translating a sentence into English or while transformation of a sentence to any other kind of sentence. Okay? So first of all, in last video we have discussed about the master rules. What were the master rules? Master rules were of the sentence, not of the tense. Master rules gave us an idea. Master rules ने हमें idea दिया था. What was the idea that was given by the master rules to us? That was the idea of a particular type of sentence. The idea that was given to us by the master rules, that was the idea that these are the rules of a particular type of sentence, not of any tense. We prepared the rules of many tenses and various types of sentences under those tenses. Today we are going to cover the full topic of the tense under these master rules and with the help of this table that I have prepared. This is the table that I prepared in this segment. This is what? This is present tense. This is what? This is past tense. And what is this? This is future tense. So this is the whole table that is being studied by us. That is the future tense. This is of past tense and this is of present tense. Here present, definite, continuous, perfect and perfect continuous. अब समझिए इस टेबल का फायदा क्या होगा. जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं, हम टेंस की डेफिनेशन को लर्न करते हैं. डेफिनेशन लर्न करने के बाद व्हाट डू वी डू? वी जस्ट मेमोराइज ऑल द रूल्स. वी लर्न द स्ट्रक्चर्स. Many of the things we used to do. But if I say, if you have prepared this table, or you have learned this table along with the master rules, along with these master rules, then you need not to forget and not to learn anything more. Only you have to learn this subject, helping verb and verb. Then your tense is clear. Okay? How this works? Let's start. First of all, today we are going to discuss about the positive sentences. What? I'm not talking about any tense. I'm talking about a particular type of sentence that is simple positive. आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा हमारी किस बारे में होगी? That will be about the simple positive sentence. हम सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस सीखेंगे. ध्यान से समझिए. अब चाहे वो सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, हमने टेंस को नहीं सीखना है, हमने सीखना है एक सेंटेंस को. और वो हमारे सेंटेंस का टाइप क्या है? पॉजिटिव. क्या है? पॉजिटिव. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं कह रहा हूं कि भाई आप ऐसा करिए, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाइए. अब वो स्ट्रक्चर किसका होगा? स्ट्रक्चर आप बनाइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. किसका? प्रेजेंट
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बनाइए। चलिए मेरी समझ में आ गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो मैं कहां जाऊंगा सबसे पहले? प्रेजेंट वाले टेबल, दिस इज द टेबल, थ्रो आउट, दिस इज द टेबल ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में चला गया। चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस कहां है? यहां पर। तो मेरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो टेबल है वो कहां तक है? यहां। दिस इज माय टेबल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये मेरी टेबल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए मुझे टेबल भी मिल गई। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने स्ट्रक्चर बनाना है। आपको स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर किसका बनाना है? आपको स्ट्रक्चर बनाना है वो सेंटेंसेस जिनका सब्जेक्ट कैसा हो, जिनका सब्जेक्ट प्लूरल, जिनका सब्जेक्ट प्लूरल। ठीक है। अच्छा मुझे सेंटेंस कौन सा बनाना है बेटा? पॉजिटिव। मुझे सेंटेंस कौन सा बनाना है? स्ट्रक्चर पॉजिटिव। तो सबसे पहले का सिंपल पॉजिटिव की बात आ रही है, तो मेरे माइंड में क्या आएगा? मेरे माइंड में एकदम से मास्टर रूल आएगा। किसका आएगा? दैट विल बी ऑफ द सिंपल पॉजिटिव। और अब सिंपल पॉजिटिव कहां पर है? यहां पर। मुझे बहुत अच्छे से याद है। मुझे क्या याद है? मुझे याद है अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो सबसे पहले उसमें क्या यूज होगा? सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ब, एंड एट लास्ट देयर विल बी द फुल स्टॉप। व्हाट विल बी देयर? फुल स्टॉप। मुझे ये रूल लर्न है। मुझे प्रेजेंट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। किसके लिए करना है? जिसका सब्जेक्ट कैसा होगा? दैट विल बी प्लूरल, दैट विल बी प्लूरल। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मुझे क्या करना होगा? मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की टेबल पर जाना होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की टेबल कहां है? टेबल यहां पर है। मैं सबसे पहले कहां जाऊंगा? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट कहां है? यहां पर। मुझे किसका रूल बनाना है? प्लूरल का। प्लूरल वाला कॉलम कौन सा है? दिस इज द कॉलम दैट विल बी ऑफ द प्लूरल। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? आर। करते मॉडिफिकेशन। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या यूज होगा सिंपल पॉजिटिव में? सब्जेक्ट प्लस देन हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही है? दैट इज आर। देन व्हाट? मेन वर्ब। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब आर यूज हो रही है, तो वहां पर मेन वर्ब क्या यूज होगी? दैट विल बी वर्ब प्लस फॉर्म प्लस आईएनजी, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब प्लस फॉर्म प्लस आईएनजी। नेक्स्ट दैट इज ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स, देन फुल स्टॉप। लीजिए हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो। क्या हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्या हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन को लर्न किया? आई नो दैट। और ये होना भी चाहिए दैट वी मस्ट हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। वी मस्ट हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट एवरी टॉपिक। बट व्हाट लॉजिकली वी डू? व्हाट लॉजिकली वी डू? वी जस्ट systematically arrange the things and then we are using them accordingly. We are using them accordingly. And on the basis of the information that we collected, that we got, that we assembled in this table, these are sufficient to translate any sentence. These are sufficient to give us information about the structure of any tense. अब समझिए, इसके बेस पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। इस सेगमेंट में अभी चलिए सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं? हम स्ट्रक्चर्स के बारे में ही चर्चा करते हैं। पहले स्ट्रक्चर्स के बारे में ही चर्चा करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्स से ही कुछ निकल कर भी आएगा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट पार्ट, जो इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए अब मैं आपसे कहता हूं, अब मैं आपसे क्या कहूंगा? मैंने आपसे कहा कि भाई सिंपल पॉजिटिव की अगर बात हो रही है तो सिंपल पॉजिटिव में आप एक काम और करिए, आप मेरे लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाइए जिस सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, दैट विल बी प्लूरल। चलिए समझ जाते हैं। मैंने यहां प्रेजेंट का कॉलम ये है और बात हम किसकी कर रहे हैं, इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट वाला कॉलम कहां, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। दिस इज द कॉलम ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। मुझे रूल किसका बनाना है, स्ट्रक्चर किसका तैयार करना है, सिंपल पॉजिटिव। तो ये तो मेरा टेबल है, लेकिन अगर सिंपल पॉजिटिव का मुझे ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, फिर से एकदम सिंपली मास्टर रूल याद आ जाना चाहिए। किसका, पॉजिटिव। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड एट लास्ट दैट इज द फुल स्टॉप। अब मैं इन चीजों को अगेन मॉडिफाई करूंगा, अगेन यूज करूंगा, लेकिन बिफोर द formation of the structure we shall write a note here. What is the note? Let's see. Note ये है, note first. In present and past indefinite tense, the helping verb is not used with simple positive sentences. क्या कहा, यहां कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। क्वेश्चन अराइज, हमने क्या पढ़ा है, हेल्पिंग वर्ब डिफाइन या हेल्पिंग वर्ब क्लियर whether a sentence is written in which tense or of which time। कि हेल्पिंग वर्ब हमें ये बताता है कि एक सेंटेंस किस समय बोला गया है, किस समय डिलीवर किया गया है। और अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हो रहा है, सो व्हाट इज द सब्स्टिट्यूट दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, समझिए। इसके लिए नोट सेकंड, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हो रहा है, सो व्हाट इज द एक्स्ट्रा बीइंग यूज्ड ओवर देयर, दैट इज सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल पॉजिटिव के लिए केवल, तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस हम लोग ऐड कर देंगे। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल या आई है तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपली, उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करते। नेक्स्ट, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, व्हाटसोएवर बस देयर, अगर सब्जेक्ट चाहे कुछ भी है, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस में वहां मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट एट द प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो ये हमारे दो नोट्स हैं। अब चलिए अब स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। स्ट्रक्चर हमारा क्या था, अब स्ट्रक्चर अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मास्टर रूल हमारा क्या हो जाएगा, यहां से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब, तो यहां से क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब स्किप हो जाएगा। क्या होगा, सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड देन फुल स्टॉप। अब इसी में मॉडिफिकेशन कर देंगे। मैं कह रहा हूं कि वो सब्जेक्ट सेंटेंस जिसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो और टेंस क्या हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका सिंपल पॉजिटिव का आप मुझे स्ट्रक्चर बता दीजिए। मैंने कहा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, देन क्या होगा, ये मेन वर्ब कह रहा है ना, तो मेन वर्ब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब क्या यूज हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस और एस हम लोग ऐड कर देते हैं, देन ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, लास्ट फुल स्टॉप। दिस इज द रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल पॉजिटिव, द सब्जेक्ट ऑफ व्हिच सेंटेंस वाज सिंगुलर, समझ आया बेटे। अब आगे चलते हैं, आगे चर्चा किसकी करेंगे हम, अभी इसी सेंटेंस के बेस पर
हम किसकी चर्चा कर लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है सिंपल पॉजिटिव के साथ, तो क्या हुआ, सेम स्ट्रक्चर रहेगा मास्टर रूल का। यहां पर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, और ये क्या कह रहा है, ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, वहां पर क्या होगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, प्लेस देन ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स एंड एट लास्ट देयर इज द फुल स्टॉप। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पॉजिटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल की ओर चलते हैं। एडवांस लेवल क्या है, एडवांस लेवल ये है कि अब हम लोग इंडेफिनिट से हटके परफेक्ट की ओर चलते हैं, इसकी परफेक्ट की ओर। और सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे परफेक्ट में, परफेक्ट में हम शुरुआत करेंगे किसकी, दैट विल बी द स्टार्टिंग ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सिंपल पॉजिटिव की चर्चा कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर सिंपल पॉजिटिव की चर्चा कर रहे हैं तो क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। चलिए सिंपल पॉजिटिव की हम चर्चा कर रहे हैं, अब आ जाते हैं मास्टर रूल। मुझे पता है, पहले फ्यूचर वाली टेबल देख लेते हैं। ये कौन सी टेबल है, दैट इज ऑफ द फ्यूचर टेंस। परफेक्ट कहां पर, ये इंडेफिनिट है, ये कॉन्टिन्यूअस है, एंड देन दिस इज द परफेक्ट। सो व्हिच टेबल हैव आई टू पे अटेंशन, जो मेरी अटेंशन का पेन है वो कौन सी टेबल है, दिस इज द टेबल दैट आई एम गोइंग टू फॉलो व्हाइल सॉल्विंग या व्हाइल मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस समझो, यहां पर फर्स्ट पर्सन लिखा है, क्या लिखा है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी, विच इज द पार्ट ऑफ प्रोनाउन। जब हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन के दौरान हमारे पास तीन पर्सन आते हैं, दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फ्यूचर टेंस में यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो पहले हम किसका रूल बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट के उस सेंटेंस का, किसका, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के उस सेंटेंस का रूल बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका सब्जेक्ट क्या हो, जिसका सब्जेक्ट कोई फर्स्ट पर्सन, जिसका सब्जेक्ट कोई फर्स्ट पर्सन। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं यहां पर हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव यूज हो रही है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ये कहती है कि यू में यूज विल हैव एट द प्लेस ऑफ बोथ द सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, यू में यूज विल हैव व्हाइल स्पीकिंग, स्पोकन वर्ड ये कहता है। लेकिन टेक्निकल चीज जब हम समझ रहे हैं तो हमें कैसे समझना होगा, सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो हमें क्या करना होगा, समझिए। सबसे पहले मास्टर रूल की ओर ध्यान देते हैं, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट है, जैसे सब्जेक्ट लिख लेते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट कैसा है, फर्स्ट पर्सन, और अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही है, दैट इज द शैल है, दैट इज शैल है। सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव यूज हो रहा है। आफ्टर दैट मेन वर्ब, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव यूज हुआ, तो वहां पर मेन वर्ब क्या कहता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज, व्हिच इज पास्ट पार्टिसिपल, देन सिंपली ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड एट लास्ट दैट इज द फुल स्टॉप। देखिए आपका स्ट्रक्चर तैयार है इसका, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आगे चलते हैं चर्चा, आगे हम कहां चलेंगे, इसी में एक और मॉडिफाइड कर देते हैं, मींस वो सेंटेंस का रूल बनाइए जिनका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन को छोड़कर कुछ भी हो, या मैं कहूं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए रूल बताइए। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो यहां पर क्या आ जाएगा, एज इट इज सब्जेक्ट प्लस शैल हैव। अगर सब्जेक्ट आई और बी को छोड़कर, मीन जो फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं, फर्स्ट पर्सन को छोड़कर सब्जेक्ट चाहे कुछ भी है, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रहा है, दैट इज द विल हैव, क्या यूज हो रहा है, विल हैव।
हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रहा है, दैट इज विल हैव यूज हो रहा है, और वहां पर मेन वर्ब की क्या फॉर्म यूज हो रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज। ओके, सो if you get the point, if you get the point, if you get the logic, if you learn the technical terms, definitely there will be no confusion in future while learning the tenses, while attempting any problem of the tense. Okay, आगे चलते हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। टॉपिक हमारा सिंपल पॉजिटिव ही रहेगा। आगे चर्चा हम करेंगे इसके बारे में। चलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में अगेन सिंपल पॉजिटिव का रूल बनाना है। सिंपल पॉजिटिव का रूल बनाने के साथ हमने देखना है कि वहां पर उस सब्जेक्ट का रूल बनाना है जिसका सब्जेक्ट, सेंटेंस का रूल बनाना है जिसका सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल। क्या होगा, प्लूरल। लेकिन प्लूरल किसको छोड़कर होगा, फर्स्ट पर्सन को छोड़कर। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए रूल बनाना है सिंपल पॉजिटिव। अगेन मुझे याद हो गया, अब मुझे याद हो गया, अब मुझे मास्टर रूल की ओर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत बार इसे रिवाइज कर चुका। मुझे पता है सबसे पहले मास्टर रूल क्या कहता है सिंपल पॉजिटिव का, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, लास्ट देयर विल बी द फुल स्टॉप। समझिए, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं डायरेक्ट अपना रूल, मास्टर रूल, दैट इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड देन इट इज द फुल स्टॉप। मेरे पास मास्टर रूल आ गया। मास्टर रूल के ही आधार पर मैं यहाँ पर मॉडिफाई करके यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार कर दूंगा अपने सेंटेंस का। कौन सा सेंटेंस है, मेरा सेंटेंस है सिंपल पॉजिटिव। टेंस क्या है, टेंस है मेरा प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर की टेबल ये है पूरी हमारी को। इसमें मुझे दो ढूंढना है, कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस वाला कॉलम। यहाँ पर मैं कैसे आऊंगा, इसमें मेरा मिल गया कॉन्टिन्यूअस टेंस। वो कह रहा है जो प्लूरल है, लेकिन प्लूरल किसका हो, फर्स्ट पर्सन को छोड़कर किसी का भी हो। प्लूरल सब्जेक्ट है तो सबसे पहले क्या आएगा, देख लीजिए, एज इट इज सब्जेक्ट, देन क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन नहीं है, चाहे कुछ भी है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही है, दैट इज विल बी प्लस मेन वर्ब। अगर प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की चर्चा करेंगे, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी और विल बी हेल्पिंग वर्ब है, तो वहां पर मेन वर्ब क्या यूज हो रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स एंड देन व्हाट दे विल बी द फुल स्टॉप। मेरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो बेटा अब आपके लिए आज का वर्ब क्या है, आज का वर्ब आपके लिए ये है, आप जब सीख जाएंगे, अभी हमने क्या ट्राई किया है, सिंपल पॉजिटिव, सिंपल पॉजिटिव। आपको ट्राई क्या क्या करना है अभी, सिंपल नेगेटिव, सिंपल नेगेटिव। उसके बाद क्या ट्राई करना है, इंटेरोगेटिव पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव पॉजिटिव, डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, kindly leave a message in comment box. If you found the video worth watching, kindly like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a good day.